Hello guys, welcome to my channel. In this video I am going to teach you class 8 chapter number 2 of English Honeydew, that is the tsunami. So, as all of us has heard about the tsunami, what a tsunami is, the first question that exists in our mind after reading this chapter, you will be really clear with this topic. So, first of all, there is written that before you read, so आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. There is written before you read that Andaman and Nicobar Island is given downwards, and you can see the map of the Andaman and Nicobar Island. This is all the map, and you have to understand it fully after. If I will be able to explain you this after reading this whole chapter, and this is a part 1 of this chapter, and in this video I am going to teach you the several stories about the Andaman and Nicobar Island, that the tsunami waves come on Andaman and Nicobar Island and what kind of destructions are there, and some people which are survival of the tsunami waves. I'm going to teach you that stories as they have been shared in this chapter, and you are going to read in this chapter this time in 8th class. So let's begin with this chapter. So the first thing, that what does this chapter is. So as you can see from the topic, what is the tsunami? So we are going to discuss what tsunami is in the next topic, like you can say in the next page of 25th page of this Honeydew chapter. So Honeydew book का ये 25th page है जो हम पढ़ रहे हैं. So यहाँ पर the first line of this chapter, that is, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. So the main thing in whole this chapter is this part. This part of this chapter is very important, as you can note it down in your notebooks, in your register, whatever you are having with you, and make notes of that. Whatever I am going to underline in this chapter, you have to note it down in your anything that you are having with you now. So if you are not having anything with you, so please remember it thoroughly and you can understand it fully by this video. So the first thing here is written is, a tsunami is a very powerful and large wave caused by earthquake under the sea. That means जो हमारे सुनामी है, लाइक द वर्ड सुनामी, ये सुनामी होती क्या है? सुनामी होती है एक बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा मीन्स पावरफुल, शक्तिशाली, एक मीन्स आप कह सकते हो लहर होती है, वेव होती है, जो कि किससे कॉज कैसे होती है? अगर हमारे वाटर के अंदर लैंडस्लाइड्स हों, वोल्केनिक इरप्शंस हों, एंड मेनली अर्थक्वेक्स जो होते हैं, उससे ज़्यादातर सुनामी फॉर्म्ड हो जाती है और ज़्यादातर सुनामी आप कह सकते हो आती है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर is here, that what is a tsunami? A tsunami is a large powerful wave caused by earthquake under the sea. So is it clear with you? So here is written, on 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. अब हम इस चैप्टर में जो आगे पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्या होगा कि आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर दी गई है सुनामी की डिस्ट्रक्शंस कैसी हुई हैं. नीचे आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी बताया है इन्होंने. सो इसमें हम स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं बेसिकली, कि कौन सी स्टोरी इन्होंने लाइक शेयर की है, कई लोगों की स्टोरीज़ जो कि यहाँ अंडमान एंड निकोबार की ही हैं, मोस्टली अंडमान एंड निकोबार की हैं, बट बीच में कई आपको थाईलैंड की भी मिलेंगी थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पार्ट ओनली इन दिस वीडियो. सो आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. So this is 26 December 2004. The story is a true story and there is written downward. 26 दिसंबर की है ये, लाइक 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और जो थाईलैंड के पार्ट थे उसमें. सो हम उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. करेज एंड सर्वाइवल, ये जो वर्ड है, मीन्स करेज मतलब हिम्मत, और मीन्स वो कई लोग जो सर्वाइव्ड हो गए, इस मीन्स सर्वाइवल अपने कर पाए कि आप ज़िंदा रह सके, वो अलाइव रहे. क्यों? बाय द सुनामी वेव्स, वो साथ में स्वेप्ट अवे हो सकते थे बट दे आर नॉट. सो ये करेज और हिम्मत की कहानियाँ हैं जो नीचे की हुई हैं. सो ये नीचे दी कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं. उससे पहले आप ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, did animal sense that a tsunami was coming? अब इन्होंने क्वेश्चन पुट किया है यहाँ पर कि एनिमल्स को
पता चलता है कि कोई सुनामी, लाइक सुनामी का मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर आपको बताया। व्हाट इज़ अ सुनामी? सुनामी इज़ अ पावरफुल एंड लार्ज वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। ठीक है, सो यहाँ पर बताया कि एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है, उनके पास ऐसी कोई सेंस होती है। सो नीचे दी गई स्टोरीज़ में ये बताया है कि होती है उसमें सेंस। सो हम नीचे अब पढ़ना शुरू करते हैं। आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इसकी फ़ोटो दी गई है, अब थोड़ी सी ग्लॉसरी यहाँ पर बताई गई है नीचे। सो हम वो भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। ये आपको देख सकते हैं ग्लॉसरी है, और ऊपर आपको यहाँ पर एक पिक दी गई है, और आप इसे देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली डिस्ट्रक्शन कॉज की है, जो कि थाईलैंड में और आप कह सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सुनामी वेव आई थी। सो let's begin with the first part of this chapter, that is downwards. So let's begin. This is the first part of this chapter, and we are going to discuss about this chapter in the first video, that is this part. So these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. So first thing आपने इसमें बताना है आर्चीपेलेगो क्या होता है। पहले तो आप अंडरलाइन कीजिए आर्चीपेलेगो को। अब आर्चीपेलेगो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लॉसरी में भी दिया गया हुआ है। आर्चीपेलेगो यहाँ पर थोड़े सी मीन्स आप कह सकते हो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में नहीं दिया गया। सो ये बहुत इजी वर्ड्स है, इसलिए आप इसे एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक पे, एज यू आर मेकिंग द नोट साइड बाय साइड, और एनीथिंग यू आर हैविंग टू मेक द नोट। सो अंडरलाइन दिस word archipelago, and I am going to explain it like this is a group of many islands. आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत सारे टापू हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि सी से सराउंड हैं। लाइक आप कह सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ वन ऑफ दैट। आप कह सकते हो आपने इंडियन मैप में देखा ही होगा, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप ने, कि बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कि सराउंड है एक सी से या फिर वाटर बॉडी से। सो वही यहाँ पर बताया है आर्चीपेलेगो मीन्स कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि सी या किसी भी वाटर बॉडी यू कैन से उससे सराउंड किए गए हुए हैं। सो ये आपको पता चल गया आर्चीपेलेगो का मतलब। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज द स्टोरी। द मेन स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब आप देख सकते हो इग्निशियस। इग्निशियस इज़ अ मैन। Here it is a man, it's person or you can say character in the story. So Ignatius जो था वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था जो कि कैचल में थी। कैचल एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक जगह का नाम है, और यू कैन से एक छोटी सी जगह आप कह सकते हो। सो जो इग्निशियस था वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर था। लाइक अब कह सकते हो आप सोसाइटी में रहते हैं तो उसके कोई ना कोई सेक्रेटरी, मैनेजर एंड ऑल कई पोस्ट पे जो लोग होते हैं वैसे। सो वो एक सोसाइटी का मैनेजर था। सो क्या हुआ एक दिन, पहले तो एक दिन उसकी वाइफ ने उसे सुबह 6 बजे जल्दी उठा दिया। क्यों उठाया? क्योंकि उसकी वाइफ को लग रहा था कि अर्थक्वेक आ रहा है, लाइक अर्थ थोड़ी सी मूवमेंट में आ रही है, और अर्थक्वेक आप कहते हैं उसे। तो अर्थक्वेक आ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा मीन्स बैड फीलिंग आ रही थी कि अर्थक्वेक अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। सो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी एक्चुअली। तो उसने पहले तो अपने हस्बैंड को उठाया जो कि जिसका नाम इग्निशियस था, जो कि एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सो उसने उठाया और उसे बताया। सो जो इग्निशियस था उसने बहुत ही ध्यान से अपने टेलीविज़न सेट को टेबल के नीचे कर दिया, ग्राउंड के पास। जैसे कि हमें पता है अगर अर्थक्वेक आया तो हम टेबल के नीचे जाते हैं और किसी भी अंडर शेडो के नीचे चल जाते हैं। लाइक आपको बताया भी हुआ है रूल्स में, इफ़ अर्थक्वेक अकर सो व्हाट यू हैव टू टेक द प्रिवेंशन अकॉर्डिंग टू दैट अर्थक्वेक। सो उसने क्या किया, वो अपने टेलीविज़न सेट को, होगा उसका कोई टेलीविज़न सेट था, उसको उसने ग्राउंड पर रख दिया, टेबल के नीचे रख दिया, टेबल के अंडर रख दिया। और वो सभी फैमिली मीन्स रश्ड आउट होगी। मीन्स आप बता सकते हैं यहाँ पर रश्ड आउट मीन्स बाहर आ गई, आप कह सकते हो दूर चली गई, भाग गई, उस हाउस से दूर चली गई काफ़ी सेफ प्लेस पे। सो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लॉसरी में भी दिया गया। ट्रेमर का मतलब लाइक जब अर्थक्वेक आता है थोड़ा सा शेकी मूवमेंट होती है, अर्थ की प्लेट्स हिलती हैं, मूवमेंट में आती हैं, तो वो स्लाइटली मूवमेंट भी होती है, जो शेक होता है अर्थ का, उसे हम ट्रेमर कहते हैं। एज इन अनदर वर्ड वी आर गोइंग टू नो, वी हैव नोन दिस ट्रेमर एज एन अर्थक्वेक। सो जब वो अर्थक्वेक रुका तो आप वहाँ क्या देख रहे हैं वो लोग कि जो सी है, जो आप कह सकते हो पानी है सी का, वो ज़्यादा ऊंचा जा रहा है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है उसकी फैमिली। उनके 2 बच्चे जो है वो अपने मदर के फादर के साथ चले गए और मदर के ब्रदर के साथ। लाइक यू कैन से मदर के फादर हुए उसके नाना जी
और मदर के ब्रदर हुए उसके मामा। सो वो अपने नाना और मामा के साथ चले गए, दो बच्चे, और वो कभी भी दिखे नहीं आगे, ऑपोजिट साइड में चले गए थे और वो कभी भी नहीं दिखे। उसकी जो वाइफ थी वो भी उस पानी में ही बह गई थी, मीन्स आप कह सकते हो स्वेप्ट अवे, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड। सो वो भी मीन्स चली गई थी। अब बस 3 बच्चे बचे थे जो कि बच चुके थे, जो कि अपने पापा के साथ आए थे, आप कह सकते हो उसके फादर जो इग्निशियस हैं वो उसके साथ आए थे, तो वो ही सिर्फ बच पाए इस पूरे केस में। सो यहाँ तक हमारी एक छोटी सी एक कहानी थी। यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ छोटी छोटी हैं बट वो, सो ये फर्स्ट पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे एक आपको और स्टोरीज़ दिखेंगी, थोड़ी छोटी छोटी हैं वो। ये सिर्फ था कि सर्वाइव क्या किया, किसने सर्वाइव किया, किसने नहीं किया, कौन स्वेप्ट अवे हो गया, लाइक दिस। अब इन्होंने बस यही बताया है स्टोरीज़ में। So let's continue the stories in the next page. So here is the another story, only from here to here. This is the story content and another story content is from this. So यहाँ पर क्या बताया है, संजीव एक पुलिसमैन था जो कि कैचल आइलैंड में ही सर्व करता था, कैचल आइलैंड में ही अपनी मीन्स नौकरी करता था, जो कि निकोबार ग्रुप का एक छोटा सा आइलैंड है निकोबार। सो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि उसने थोड़ा सा मीन्स कैसे भी करके मैनेज कर लिया अपने आप को बचाना, अपनी वाइफ को और अपने डॉटर को, जो छोटी सी थी, बेबी डॉटर थी उसकी, उसके वेव से। बट उसने जब एक हेल्प की आवाज़ सुनी, उसके जॉन जो था उसका गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ की हेल्प की आवाज़ सुनी कि हेल्प मीन्स वो भी स्वेप्ट अवे होने ही वाली थी। सो जब वो उसकी वाइफ, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए संजीव पानी में गया, उससे मीन्स बचाने के लिए पानी में कूद गया, वो दोनों ही बह गए और पानी के साथ ही बह गए। सो ये जो थी एक छोटी सी स्टोरी थी, यहाँ तक ही थी सिर्फ। सो उसके बाद यहाँ पर एक और स्टोरी आती है छोटी सी। 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद द पेरेंट्स एंड 77 पीपल अदर पीपल। सो यहाँ पर बताया कि एक 13 years old मेघना थी, वो भी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, हर फैमिली, और 77 पीपल और भी थे उसके साथ ही सुनामी की वेव्स में ही बह गई थी। उसने 2 दिन, सिर्फ 2 दिन सी में ही फ्लोट करते हुए, मीन्स तैरते हुए 2 दिन काटे अपने, और अपने एक वुडन डोर के ऊपर बस वो एक तरह से आप कह सकते हो बच गई थी, ऊपर हाथ रखे। उसने 11 बार अपने सर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर को जाते देखा। पहले तो आप देख सकते हो रिलीफ हेलीकॉप्टर लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो रिलीफ हेलीकॉप्टर को आपने पहले तो अंडरलाइन करना है अपनी वर्कबुक पे, और एनीथिंग यू आर हैविंग। सो रिलीफ हेलीकॉप्टर क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर ग्लॉसरी में भी दिया गया है रिलीफ हेलीकॉप्टर को। रिलीफ हेलीकॉप्टर क्या होता है, दैट इज़ अ हेलीकॉप्टर दैट इज़ वो जो लोगों को लेके आता है फ्लड्स के, ड्यूरिंग फ्लड्स के दौरान, और बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शंस होती है अर्थक्वेक से होती है एंड ऑल, उसके लिए जो वो हेल्प के लिए जो भेजा जाता है हेलीकॉप्टर, लाइक वो जो आदमी होते हैं और जो भी सारे लोग होते हैं उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। सो वही यहाँ पर भी था कि रिलीफ हेलीकॉप्टर को उसने, मेघना ने अपने सर के ऊपर, मीन्स आप कह सकते हो हवा में 11 बार उड़ते देखा, पर वो उसे नहीं देख पाए जो हेलीकॉप्टर में थे। सो उसने क्या कहा, बट दे डिड नॉट सी हर, बट शी वॉज बॉट टू द शोर बाय अ वेव। अब वो एक लहर के साथ ही जो किनारे तक पहुँच गई, एंड उसने क्या देखा, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। अब यहाँ पर वो अब दिख रही थी, वो मीन्स आप कह सकते हो इस स्टोरी में बताया गया कि वो फिर उस आइलैंड पे चलती हुई दिखाई दी, आप कह सकते हो। सो यहाँ पर अब यहाँ पर एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी यहाँ तक लंबी जाएगी, मीन्स आप कह सकते हो यहाँ से अलमास यहाँ पर से नीचे तक पूरी है। सो ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर आपको ये समझ आएगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल चैप्टर है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फुली एक्चुअली। सो अब अल्माज जेव्ड वॉज 10 years old। अब एक गर्ल थी अल्माज जेव्ड। सो वो एक 10 साल की लड़की थी, वो एक ब्रिटिश स्कूल की, मीन्स आप कह सकते हो स्टूडेंट ऑफ अ कैरमल कॉन्वेंट इन पॉर्ट ब्लेयर विद हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। अब वो अल्मा जेव जो थी वो एक स्टूडेंट थी कैरमल कॉन्वेंट इन पॉर्ट ब्लेयर में, एक स्कूल है आप कह सकते हो, कुछ भी
यहाँ पर एक नाम दिया गया कैरमल कॉन्वेंट स्कूल का। उसके वहाँ पर थी, स्टूडेंट थी उसकी, और उसके जो फादर थे, उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था। उसकी मदर जो रहीला हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैनकोरी आइलैंड। अब उसकी मदर का होम जो था वो नैनकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उसकी होल फैमिली वो गए हुए थे अंडमान एंड निकोबार में, आप कह सकते हो। सो यहाँ पर लिखा है व्हेन द ट्रिमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपको ट्रिमर के बारे में बताया क्या होते हैं, वो शेकी सी मूवमेंट होती है अर्थ की। सो वो जब अर्ली सी मॉर्निंग मीन्स बहुत सुबह सुबह जब वो अर्थक्वेक आए, वो ट्रिमर आए, जो फैमिली थी वो सो रही थी। अल्मा के फादर ने जब उसको सी वेव देखी, रिसीड हुई मीन्स जब देखी कि वो रिसीड आ रही है मीन्स पीछे से बहुत ज़्यादा फोर्स से आ रही है, सो उन्होंने समझ लिया कि वाटर बहुत ज़्यादा ज़ोर से आने वाला है, फोर्स से। सो उन्होंने सबको उठाया और वो सबको एक सेफ़र प्लेस में लेके जाने की कोशिश की। अब जब वो भाग रहे थे, उसके जो ग्रैंडफादर हैं अल्मा जेफ्ट के ग्रैंडफादर कहीं पर टकरा कर गिर गए, और वो जो उसके फादर थे उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए वो उनके पास गए, बट वो दोनों एक बहुत ही बड़ी वेव्स के साथ ही बह गए। सो अब यहाँ पर लिखे अल्माज मदर। अब अल्मा की जो मदर थी, अल्मा की मदर आपको यहाँ पर ऊपर बताया भी गया है, यहाँ पर उसकी मदर के बारे में भी थोड़ा सा कि जो नैनकोरी में आइलैंड में रहती है। सो जो उसकी मदर थी वो एक उसकी आंट, वो सारे एक कोकोनट लीफ पे, वो दोनों एक कोकोनट लीफ पे खड़े हुए थे, आप कह सकते हो पकड़ के खड़े थे, बट वो ट्री भी जो था वो भी उस वेव के साथ ही अपरूट हो गया एंड वो दोनों भी बह गए पानी के साथ। सो अल्मा जो थी सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग मीन्स जो अल्मा थी उसने एक वुड की पीस बहते हुए देखा, वो उसके ऊपर चढ़ गई और वो वहाँ पर बेहोश हो गई, वहाँ पर अनकॉन्शियस हो गई, आप कह सकते हो। जब वो उठी तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है जो कि एक करमोटा में है। करमोटा इज़ अ प्लेस, सो यहाँ पर करमोटा में है। फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट टू पॉर्ट ब्लेयर। पॉर्ट ब्लेयर में वो लाएगी वहाँ से करमोटा से, एज यहाँ पर पीछे डिस्क्राइब किया गया कि उसकी मदर जो थी पहले तो पॉर्ट ब्लेयर में ही वो एक स्टूडेंट थी। सो वहाँ पर पॉर्ट ब्लेयर में लाई गई। जो लिटिल गर्ल थी उसके वो कोई भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी किसी से भी। सो बट वो फिर भी वो ट्रेमेंटाइज्ड थी, लाइक यू कैन से एक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, कंफ्यूज थी और शॉक भी थी। सो वो किसी को ये मीन्स बताना नहीं चाहती थी इंसिडेंट। सो यहाँ पर आपको ये जो वर्ड दिख रहा है ट्रोमेंटाइज्ड, सो ये ट्रोमेंटाइज्ड वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है अपने नोटबुक और वट एवर यू आर हैविंग विद यू। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन चेक। And with this we are completed with our first part of this chapter. I hope you were understanding this chapter fully and you had understand it fully. So if you understand this chapter first part very clearly, please hit on the bell icon, subscribe my channel, and also like, share, comment.